Okay. Next, operational activities of the development banks. Different operational activities जो development banks करती हैं, that is project appraisal and eligibility of the applicants. Means जो projects तैयार किए जाते हैं, ठीक है, development banks के through, and eligibility of the applicants. जो भी applicants invest करते हैं, every financial institution, since a particular area of activities, or these are certain limits prescribed beyond which they cannot go. Okay, that the project appraisal and the eligibility of the applicants, जो भी applicants होते हैं उनकी proper eligibility के लिए work करता है, and project appraisal के लिए work करता है जो development banks होती हैं, ठीक है. Next one is the technical appraisal. Means the technical appraisal involves the study. First one is the location of the project in related to the availability of the raw material, कि एक particular location में अगर एक infrastructure का development किया जाए, it means वहाँ पे availability of raw materials हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, availability of the water facilities is there, labor is there, fuel facilities are there, transportation facilities are there, communicating facilities are there, and the market for the finished goods are there. So all these availability of a particular area is available or not in a technical appraisal. Okay. नेक्स्ट, जब कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है तो वहां पे ये सारी की सारी अवेलेबिलिटीज को देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे किसी भी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वहां पे प्रॉपर पावर सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है, वाटर सप्लाई फैसिलिटीज है कि नहीं है, लेबर फैसिलिटीज है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है कि नहीं है, एंड कम्युनिकेटिंग फैसिलिटीज आर आल्सो देयर. ओके, so these facilities are included in the technical appraisal at the development banks. Next one is the scale of operations and its suitability for the planned project. जो भी प्लानिंग किए गए हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, तो उनके लिए स्केल ऑफ ऑपरेशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. Next, that one is the fourth point, the technical soundness of the project. जो technical soundness होती है एक प्रोजेक्ट की, वो सिस्टमैटिक वे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, that is included in the technical appraisal. नेक्स्ट आता है आपका, दैट वन इज द फिफ्थ पॉइंट, सोर्सेज ऑफ परचेजिंग प्लांट्स एंड मशीनरी एंड द रेपुटेशन टू द सप्लायर्स. जो भी सोर्सेज हैं प्लांट को परचेज करने के लिए, मशीनरी को परचेज करने के लिए, एंड द रेपुटेशन टू द सप्लायर, और जो भी सप्लायर्स हैं उनकी प्रॉपर रेपुटेशन कैसी है, किस तरीके से वो सप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट दैट वन इज द सिक्स्थ पॉइंट, अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ factory effluent and the use of byproducts is there. Next, that one is the seventh point, the program for completing the project. Different program is to be started for completing the project, and sources of supplying and marketing arrangement facilities are there. Next one is the third point, that is economic availability. Next, assessing commercial expectations are there, the examination of commercial aspects related to the arrangement for the purchase of raw material and scale of finished products. जो भी raw material purchase किए जाते हैं और sale of finished goods कितना हो सकता है, ठीक है, एक commercial expectation से देखा जाता है, ठीक है. Next one is the fifth point, that is financial feasibility. The financial feasibility of a new and an existing concern that is to be asserted directly. The assessment of a new concern will involve, जो assessment किया जाता है new concern का, जिसे financial feasibility बोलते हैं. First one is the needs for the fixed assets. First, fixed assets की needs, working capital की requirement, and preliminary जो expenses होते हैं उनकी requirement will be estimated to find out its needs. Next one is the financial planning should be
related in the capital structure, promoters contribution and debt equity ratio. That is the financial feasibility of the development banks. नेक्स्ट आता है आपका मैनेजरियल. द सक्सेस ऑफ इन कंसर्न डिपेंड्स अपॉन द components of the management, proper application of the various policies. जो भी applications को adopt किया जाता है, various policies को follow किया जाता है, it is to be determine the success of the enterprises. नेक्स्ट 8 पॉइंट है आपका नेशनल कंट्रीब्यूशन. नेशनल कंट्रीब्यूशन में कॉमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी, national contribution of the project is also taken into accounts. The role of the projects in the national economy. जो projects होते हैं उनका क्या रोल है एक नेशनल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो नेशनल कंट्रीब्यूशन कितना है एक डेवलपमेंट बैंक का. ठीक है, नेशनल कंट्रीब्यूशन में कितना वो गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है. रीजनेबल प्राइसेस क्या है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स कैसे स्टार्ट किए जाते हैं डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू. नेक्स्ट 8th पॉइंट है बैलेंसिंग ऑफ वेरियसेस. बैलेंसिंग ऑफ वेरियसेस मींस होता है जो भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग मेंटेन करना. बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर. The circumstances of individual projects will help in various factors. Some factors may be stronger so that their analysis should be avoided. Next 8 point है आपका बैलेंसिंग ऑफ द वेरियस. मींस जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग लाना. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लोन disbalancement means the loan is the alternative agreements, that is to be the documents. नेक्स्ट आता है नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स. मींस जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी क्यों रिक्वायरमेंट हुई किसी भी कंट्री को. ठीक है, व्हाई दे आर हैविंग द नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स. तो डेवलपमेंट बैंक्स की नीड्स क्यों हुई. फर्स्ट जो पॉइंट है डेवलपमेंट बैंक्स की नीड इसलिए हुई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हुई किसी भी एक कंट्री को. ओके, नेक्स्ट आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. मींस देयर इज अ कैपिटल नीडेड टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एट दैट टाइम जो इंडस्ट्रीज आर डिमांडिंग द कैपिटल. ओके, तो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स. मींस जब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं जब वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट करती हैं उस टाइम पे क्या होता है, जब कैपिटल उन्हें नहीं मिलती है तो उस टाइम पे डेवलपमेंट बैंक्स क्या करती हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं इंडस्ट्रीज के. नेक्स्ट 3rd पॉइंट है प्रमोशनल एक्टिविटीज. जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे किसी भी कंट्री का प्रमोशन के लिए हेल्पफुल होती हैं, दैट इज द प्रमोशनल एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल कैपिटल नीड्स अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज from the lack of the expertises, managerial and technical, how known, development of different projects, job of a particular employees, that are the promotional activities that is to be done by the development banks. तो जो भी प्रमोशन जिससे किसी कंट्री का प्रमोशन होता है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज को डेवलपमेंट बैंक करता है. नेक्स्ट आता है दैट इज द 4th पॉइंट aids to small scale units. aids to small scale units में आता है the large scale was to some extent able to meet its needs. There was a needs to migrate suffering of small and medium size industries. जो भी small scale industries होती हैं उनको इजिली लोन नहीं मिलता है. ठीक है, तो जो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं दे प्रोवाइड द लोन्स फॉर द स्मॉल स्केल यूनिट्स. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें प्रॉपर लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो डेवलपमेंट बैंक्स का होता है. नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स. जो ग्रोथ हुई डेवलपमेंट बैंक की वो कब स्टार्ट हुई थी, इंडिया कंट्री के अंदर एज वेल एज इन अ फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो द डेवलपमेंट बैंक्स इज टू बी डेवलप्ड.
डिफरेंट फेजेस में पहले ये डेवलपमेंट बैंक्स यूरोप में डेवलप हुई थी, ठीक है। 1902 में ये डेवलप हुई थी स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में ये डेवलप हुई थी। उसके बाद में फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ था इनका, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्टार्ट किए थे, यूरोप में डेवलप की गई थी। नेक्स्ट आता है आपका इन डिफरेंट फेजेस में जो डेवलपमेंट बैंक्स का डेवलपमेंट हुआ था। थर्ड फेजेस में जब डेवलपमेंट बैंक्स डेवलप हुई थी, द थर्ड फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन कनाडा, कनाडा में डेवलप हुई थी 1944 में। उसके बाद में फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर द इंडस्ट्री लिमिटेड एंड इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इंग्लैंड में डेवलप हुआ था 1945 में। ऑस्ट्रेलिया में 1945 में भी डेवलपमेंट हुआ था डेवलपमेंट बैंक्स का, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनका डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया, अब इंडिया कंट्री में हाउ द डेवलपमेंट बैंक इज टू बी डेवलप्ड in a foreign rules in India did not take much interest in the industrial development of the country. They were interested to take raw materials to the island and different development processes to be followed in India. The government did not show any interest for getting the institutions needed for the industrial financing. Just after that, Industrial Financial Corporation of India start हुआ था, जो कि in 1949 के अंदर रिजर्व बैंक जो थी had undertaken a studied and needs for a specific institutions. It was in 1948 में जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था, जिसे हम IFCI बोलते हैं, ठीक है। 1951 में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलप हुए थे, जिसे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC बोला जाता है। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ था इंडिया कंट्री के अंदर डेवलपमेंट बैंक का, IFCI and the state financial corporation serve only a limited purpose. These were a need for the dynamic institutions, जिन्हें हम बोलते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज आई, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI was established in 1955 as a joint stock company. ICICI was supported by the government of India. Next आता है आपका another institutions refined corporation for the industry limited RCI was to be set up in 1958 and by the Reserve Bank of India, LIC and commercial banks. Next, the purpose of RCI was to be provide refinance to the commercial banks and SFCs against terms loans guaranteed by them to the industrial concern in a private sector, that is to be developed in 1964. Different industrial development जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी डेवलपमेंट बैंक्स हैं, दैट इज टू बी स्टार्टेड इन अ फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड IDBI वाज अ wholly owned subsidiary of the RBI that is to be started as a development bank. Now it's clear. Any doubt, any problem? Yes beta. डेवलपमेंट बैंक का जो टॉपिक है इट इज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। आई रिपीटेड अगेन, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट हो तो कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस ऑथर ने दी हुई है डेवलपमेंट बैंक्स की, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स मींस होता है जो भी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, that is known as the development banks. A development banks has the opportunities to promote the enterprises and to invest purpose to stimulate and itself to carry them through concern of the relationship. Next, development banks is to be provided the medium and long term finance as a commercial has specialized in short term finance, ठीक है। तो डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। इट प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए हेल्पफुल होती हैं किसी भी कंट्री की। डिफरेंट डेफिनेशंस के बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि डेवलपमेंट बैंक्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डेवलपमेंट बैंक्स जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो कॉमन पीपल्स के थ्रू, जो पब्लिक के थ्रू जो डिपॉजिट दिया जाता है, इट कांट बी एक्सपेक्टेड बाय द डेवलपमेंट बैंक एज एन ऑर्डिनरी बैंक की तरह, ओके।
डेवलपमेंट बैंक्स आर यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक तरीके से यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं that perform the specific goal and economic development of the country. नेक्स्ट आता है, ये प्रोवाइड करते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटीज फॉर द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स के लिए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स इज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, एक तरीके से ये एजेंट ऑफ डेवलपमेंट की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड द लोन फैसिलिटीज फॉर द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट आता है, जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके लिए वर्क करती हैं। नेक्स्ट आता है, टू एलोकेट द डिफरेंट रिसोर्सेस की जो फैसिलिटीज होती हैं वो डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करती हैं। टू डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स मीन्स होता है जो बिजनेसमैन होता है उनकी स्किल्स को डेवलप करने का जो वर्क होता है वो भी डेवलपमेंट बैंक का होता है। नेक्स्ट आता है, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट मीन्स जो भी विलेज एरियाज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट आता है, टू प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटीज, फाइनेंस की जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज को थ्रू द डेवलपमेंट बैंक। ओके, is it clear students? Any doubt, any problem? Hello yes, Dhruv, Jitendra, Rohan. No ma'am. Any doubt, No, ma'am. students? Any problem? No, Your topic is no, completed. Sunidhi Sharma, Umesh, Ansu Yes, ma'am. Chaudhary, your topic is completed, the development bank. Okay, any doubt, any problem, students? No ma'am. No, ma'am. Is it clear? Now your class is over. I will take your class on tomorrow.